Greetings to all in the wonderful name of our Lord Jesus Christ. Before we go in the message, let us pray. Lord Jesus Christ, we pray unto Thee by the power of Holy Spirit, reveal the mystery of the book of Revelation. What things are hidden, let no man speak, but the power of Holy Spirit reveal us in this time, the end time message be revealed. Let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in Thy sight, O Lord, my strength and my reward. Last Sunday, amen. Last Sunday I gave you the message on Revelation, where I explained you about two persons which are going parallel. First, we have seen the message of William Marion Branham, and there is another thing which is going on that I want to show to you, because in the first chapter, first verse, what it says, the revelation of Jesus Christ. It is a difficult thing to explain and to be understood, but we have to be beware and acquaint ourselves with what the Holy Spirit is trying to teach us. The Holy Spirit is the teacher, and it will guide us to make us understand what the mystery is hidden in this paragraph, first chapter, first verse, which God gave unto him. So there is to be a one person which God gave all the mystery to him, to show unto his servants. Now this is the line which I want to focus over here and make you understand what is the mystery hidden over here. So one thing he gave to a one person, and that person we know, William Marion Branham, because he explained everything, the 7 churches and 7 seals. And again the Lord says, He will show unto His servants things which must shortly come to pass. So these servants are two persons. One is, we have already said that the God will give unto him, and that is William Branham. And there is a colon over here, and the scene changes. And what it says, He sent and signified it by His angel unto the servant John. And when we read from the book of Amos 3:7 also, he said, surely the Lord God doeth nothing, but He revealeth His secret unto His servants, the prophet. So these servants are going to be two persons. One is unto him which is given, and the other one is signified it by his angel unto the servant John. And if I read from book of 10th chapter and 7th verse, what it says about the to whom it is to be given, the same thing is written over here. But in the days of the voice of the 7th angel, when he shall begin to sound, the mystery of God should be finished, as he had declared unto his servants the prophet. So right from Amos is giving the prophecy during end time, during our time, that there are going to be two persons which are going to co-pilot Branham and this another angel, and explain it. Brother Branham explained it, and the another angel will again prophesy and again give the message. So this will be the last chance for you to come in the main fold of the bride. So to show unto his servants things which must shortly come to pass. The word is written servants. So as we read from book of 5th chapter, where it says, and I beheld. What he is saying, he is observing something. He is observing the person which God gave unto him, and that name is William Marion Branham, and that William Marion Branham is explaining the 5th chapter, and that's why he says, I beheld. And again in the 6th chapter, it says, and I beheld, 6th verse, and I beheld, and lo, in the midst of the throne and of the 4 beasts, and in the midst of the elders, stood a lamb, and it has been slain. And one of the elders, 5th
verse where it says, and one of the elders said unto me, weep not. This elder is the person who God gave unto him, and that is William Marion Branham. And he is explaining everything over here. But again in the 11th verse, he said, and I beheld and I heard the voice of many angels. So here is the second angel, which is the angel which is signified by the Lord Jesus Christ, is performing and giving the message over here and explaining the bride. And you will see in the book of 22nd chapter of the book of Revelation, where it says about the person of who is signified over here by the Lord, and that person is, and he said unto me, these sayings are faithful and true. And the Lord God of the holy prophets, Lord God of the holy prophets means two persons, one William Branham, and the person is another which is sent by God. And see the prophet, the name is here written over here, sent his angel to show unto his servants. So God will send his angel, God will send his prophet William Marion Branham, and these two persons are the servants of God, and these servants will reveal the mystery over here. And it show the angel to show unto his servant the things which must shortly come to pass. And book of in the 17th chapter we say one of the seven angels, and in the book of 18th chapter it says another angel. So I have explained all these things in previous messages. I am just recapping with you all so that you may understand it in a better way and accept that there is going to be an angel which is signified by the Lord Jesus Christ, and he is going to give the message another time. And here 21st chapter it says, but and he said unto me, it is done, I am Alpha and Omega. And he says that one of the angels, he said unto me, 21st chapter, and he saw the Holy Spirit, New Jerusalem, coming down, prepared as a bird, adorned of him. And he said unto it is that, in the 9th verse it says, and there came unto me one of the seven angels. And this one of the seven angels is Brother William Marion Branham. And the message is going to be again preached. Now to quote what I am saying, what I read in the first chapter, first verse about two persons, in the 16th chapter you can see the same thing. See, the seven vials are thrown into the earth. So between the third angel pouring out the vial upon river and foundation of the earth, and of the fourth angel pouring out his vial upon the sun, there is a gap over here. In the 5th verse and 6th and 7th verse, I want to bring your attention over here. And the third angel, that is William Marion Branham, poured out, between the third and the fourth angel which are pouring, that the gap which is hidden over here, I want to bring to your notice that in the 5th verse it says, I heard the angel of the water. This angel of the water is William Marion Branham, the message which God gave unto him. So what he is saying, thou art righteous, O Lord, which art and was and shall be, because thou hast judged thus. For they have shed the blood of saints and prophets, and thou hast given them blood to drink, for they are worthy. So this portion is explained by Brother Branham. And again in the 18th verse it says, and they shall cast dust on their head, and cried, weeping and wailing, saying, alas, alas, that great city, whereas were made rich all that had ships in the sea by the reason of her costliness, for in 1 hour is she made desolate. And cried when they saw the smoke and burning, saying, what city is like this?
the great city, and in 1 hour great riches is come to naught, and every shipmaster and all the company in the ship and sailor, and as many as trade of sea stood afar off. Okay, then again, the after Brother Branning explaining it, we go into the seventh sentence. What is said? And I heard another out of the altar. This is the another angel. है ना? Because fifth verse it says, I heard the angel of the waters say, Thou art righteous. And in the seventh sentence it said, and I heard another out of the altar saying, Even so, Lord God Almighty, thy judgment is righteous. है ना? Then the 14th chapter it says, and I looked with the lamp and stood on the Mount Zion, and I heard a voice from heaven as the voice of many waters, and the voice of the great thunder, and I heard the voice of harping with their harps. These were redeemed from among men. And I saw another angel fly in the midst of heaven, having the everlasting gospel to be preached. Other from Brother Branham message, again it is to be revealed over here by another angel. And in the 10th chapter also it says, by 7th verse, the 7th angel is Lord William Marion Branham, when he shall begin to sound the mystery of God will be finished as he has declared unto his servant the prophet. Okay. Then in the 8th verse it says, and the voice which I heard from heaven spake unto me again and said, Go and take the book. And he said unto me, Thou must prophesy again. The same message which Brother Branham explained, the same thing going to be explained by this another angel. And their power is in their mouth and in their tail, for their tail were like unto serpent. Now, Second Peter, I just want to bring to your notice, before saying anything against the anointed pastors, because Korah, Dathan and Abiram, they withstand Moses and Aaron, and the earth swallowed them, and the whole family was covered by the earth. And the 250 who were having the censer in their hand, they were also dying. So Moses told Aaron to burn the censer, and then the death stopped over there. So like this over here it says in 2 Peter, what it says. So be cautious before saying anything against the pastor or anointed pastor William Marion Branham or this another angel. Before saying anything against that is give the message self-righteousness, or is showing the photograph and showing himself some great, the God which was hidden, which did not show himself, is showing himself in Brother Branham's message, in my message also. The 1957 God showed him in his altar, and in 2025 God showed himself in this altar here from where I am speaking, and the whole image of Lord Jesus Christ in the cloud form he is showing himself, and that thing cannot be hidden, because in 22nd chapter it says the angel is saying that don't seal anything, let everything should be explained to each and every person. So you have to believe that there has to be a second chance for you, and that chance is given by the Lord Jesus Christ by the second another angel. What it says, we have also 2 Peter 1st chapter and 19th verse I am reading. We have also a more sure word of prophecy, and these prophecies are given by the two servants of God, Revelation, another angel and Brother Branham. Though you can see the Brother Branham's Holy Spirit as descending from Brother Branham to
the another angel prophet, and you can see many supernatural things you can see in my YouTube, and it is not any vague question or answering I am giving to you, because what I have seen in the visions and in the images of Lord Jesus Christ which is shown here, that I typify with the Bible, and that then I speak to you what it says over here. We have also a more sure word of prophecy. These two persons are going to give the prophecy. Prophecy means what going to happen in future. What, because it says that what things are going to be shown by Lord Jesus Christ within a very short period of time. Whereunto you do well that you take heed, as unto light that shineth in the dark place, until the day dawn and the day star rise in your heart, knowing this first, that no prophecy of the scripture is of any private interpretation. Mind well, pay attention, observe what I am speaking over here, what the word of God says over here. I am not giving self-righteous message over here, I am explaining you. I read from the Bible and giving you the message, what it says. Knowing this first, that no prophecy which are given by the servants of God, William and Branham and another angel, of the scripture is of any private interpretation. The interpretation which I see from the images of God which God has shown over here, and typifying it and reading from the Bible, and word to word I give you the explanation from here. For the prophecy came not in old times by the will of man. These prophecies are not given by a man or is a private interpretation, but holy men. The anointed persons are the holy men of God, spake as they were moved by the Holy Spirit. By the Holy Spirit, these things are being spoken unto you. The mouth is filled with honey. You can see the dome of the pillar of fire. You can see the pillar of fire on the shoulder, everything. Now, my congregation is in Hindi. I just wanted to cover up, which I did not cover in my last Sunday message for people who speak English. But that thing I gave you something over here, that in the first chapter and first verse there is the history hidden over here. Servants, and that servant God will reveal the mystery through that gave unto him, and that is William Marion Branham. That was one of the servant is William Marion Branham, and the angel signified it by his angel, and that angel is another servant. That because there is written in a plural form, that's why there is to be two person who is going to explain the whole book of Revelation unto John. Okay, now अभी अपन लोग हिंदी में चालू करेंगे कि मैंने इंग्लिश में पिछले संडे अनदर एंजल के बारे में स्टार्टिंग से लेके एंड तक बताया कि बाइबल के अंदर में इसकी बातें कहाँ कहाँ छुपी हुई है ना। तो हम उसको देखेंगे। हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि आमोस के अंदर में क्या लिखा है कि क्या किसी नगर में नरसिंगा फूकने पर लोग ना थर्राएंगे। ये जो है आवाज़ जो विलियम मैरियन ब्रैनम की और अनदर एंजल की है, ये नरसिंगा जो है संदेश के तौर पे जाएगा, है ना। क्या यहोवा बिना भेजे किसी नगर में कोई विपत्ति पड़ेगी? बिना वार्निंग के खुदा कुछ करता है क्या? तो वो पहले किसको भेजेगा? दो भविष्यवक्ताओं को भेजेगा। तो ये आमोस पहले से भविष्यवाणी कर रहा है कि प्रकाशित वाक्य के अंदर में ये जो सर्वेंट्स होंगे, ये प्रकाशित वाक्य को क्या करेंगे? खोलेंगे। वार्निंग दे रहा है आगे के तरफ की। ऐसी प्रकार से प्रभु अपने दास भविष्यवक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए हुए कुछ भी नहीं करता। खुदा स्वयं कुछ नहीं करता, बल्कि अपने सेवकों के जरिए से सारे गुप्त के भेदों को क्या करता है?
रिवील करता है। ठीक है, दूसरी बात मैं आपके सामने में रखना चाहता हूँ पतरस के बारे में। पतरस दूसरा पतरस पहला अध्याय और उसकी 20वीं आयत के अंदर में मैं आपको ध्यान लगाना चाहता हूँ कि क्या है। अपने ऑर्डेंड किए पास्टर को कृपया करके उसके ऊपर पे बिना वजह टिप्पणी या उसके संदेश के ऊपर बिना वजह कुछ नालिश लगाना या उसको ख़राब करने की कोशिश करना या अपने आप को ज़्यादा होशियार समझने की कोशिश ना करे तो बेहतर रहे। क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि लोगों को पसंद नहीं आ रहा है कि मैं अपनी फ़ोटोग्राफ दिखा रहा हूँ जिसके अंदर में खुदावन ने अपने होली स्पिरिट के ज़रिए से बहुत सारे आश्चर्य कर्म सामने पेश, यहाँ तक कि अपने आप को खुदा ने धुएं के बादल में पेश किया। लोग पसंद नहीं करते। क्यों नहीं पसंद करते? क्योंकि उनको डर पैदा होता है। जैसे कि खुदावन पहाड़ के ऊपर में जब मूसा को 10 आज्ञा दे रहा था तो टहलता था, आवाज़ से पूरी आग और ये होती, तो लोग क्या करते थे? डरते थे, कांपते थे। वो बोलते हैं मूसा हम नहीं जाते, तू जा, वही काम यहाँ हो रहा है, तुमको क्या लगता है कि ये मैं अपनी वाहवाही कर रहा हूँ? जो खुदा आज तक जिसने अपने आप को छुपाए रखा था, उसने कहा ना, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि तुम मुझे ढूंढोगे क्योंकि जहाँ से मैं आया हूँ तुम वहाँ, मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं वहाँ। तो हम तो आपको बता रहे हैं सारी बातें, है ना, जो छुपी हुई है उस पर नजर, क्योंकि जो आज खुदा छुपा हुआ था दिखता था, हाँ हमारे यहाँ से तो हम दिखाएंगे क्यों नहीं। और एंजल जो कह रहा है 22वें अध्याय के अंदर में, प्रकाशित वाक्य के अंदर में, यूहन्ना से कह रहा है कि तू छुपा मत, डोंट सील द सीलिंग ऑफ द इंटरप्रिटेशन, इस इंटरप्रिटेशन को सील मत कर, बल्कि इसको उजागर कर, दुनिया को बता, क्योंकि समय निकट है। एक और चीज़ बताता हूँ आपके सामने, ये हमारा प्राइवेट इंटरप्रिटेशन नहीं है, या हम अपने मुंह से भविष्यवाणी कर रहे। मुंह के अंदर में आप लोगों ने देखा है कि अब मैं जब कर रहा हूँ तो लोग बोल रहे हैं कि मुंह के अंदर में हानि दिखना चाहिए। अरे अब पीछे के संदेश के अंदर में तो दिखाया है कि नहीं, कि आपको कंटिन्यूस भी कुछ संदेश ऐसे कंटिन्यूस दिख रहा है, मुंह में हानिहार भरा हुआ, क्योंकि प्रकाशित वाक्य 10 और 8 की आयत पूरी होती है उसके अंदर में, खा ले तो मधु बनेगा और पेट में, और फिर से तेरे को भविष्यवाणी करना है लोगों के सामने। ये सारे भेद को बताएगा कौन? क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है 20वीं आयत के अंदर में, दूसरा पतरस पहला अध्याय 20वें, पर पहले यह जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारों के आधार पर पूर्ण नहीं होती। वो अपने मन का इंटरप्रिटेशन नहीं देता है, वो अपने मन से कुछ बकवास नहीं करता है, वो अपने मन से कोई चीज़ें जो दिखा रहा है वो अपने मन से नहीं, वो पवित्र आत्मा से उभारे जाते हैं और वो बताते हैं। अगर वो खुदा का अनॉइंटेड है तो आपको जानना चाहिए कि मुझ पे सीलिंग पहले ही 25 से 26 साल पहले लग चुकी है। खुदावन की सीलिंग लगी है कि नहीं? विश्वास करते हैं कि नहीं? वह आप लोगों ने विश्वास करना चाहिए, कमेंट में देना चाहिए। क्या देना चाहिए? हाँ, मैं विश्वास करता हूँ कि ये जो याजक बोल रहा है सही है, और कह रहा है अनदर एंजल का जो संदेश है वो ये ही दे रहा है, हम विश्वास करते हैं। करोगे क्या? सिर्फ एक ही जन ने किया है अभी, है ना, मेरा पास्टर आनंदा। तो आप लोगों को भी ये अनुग्रह है कि आप जब आप करेंगे तो दूसरे लोग भी फॉलो करेंगे, विश्वास करेंगे कि ये बात सही है। अभी अब मैं आपको बताऊंगा सेकेंड एंजल के बारे में, अनदर एंजल के बारे में, तब तो विश्वास करोगे कि नहीं? आमीन, है ना। अनिल ने किया है। अब अनिल को हिंदी में जैसा भी है, यस आई बिलीव बोलने का, इज अनदर एंजल। क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं होती। जो अनॉइंटेड जो भी भविष्यवाणी करेगा, बताएगा विलियम मैरन के बारे में और अनदर एंजल, कोई झूठ नहीं बोलेगा, वो गलत बात नहीं करेगा, उसमें सेल्फ राइचस नहीं, अपने आप को नहीं वो दिखा रहा है, वचन पढ़ के आपको समझा रहा है, दिखा रहा है कि ये ऐसा ऐसा लिखा है, विश्वास करो।
क्योंकि धूपदान उसके हाथ में है। जैसे ही हारून ने धूपदान जलाया तो क्या हो गया, उसके पीछे के लोग बचे ना, नहीं तो सब मर रहे थे, खत्म हो रहे थे। बचाया किसने? हारून ने। मूसा और हारून। देखो, इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन यानी अनॉइंटेड पर्सन जो होते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते हैं। ठीक है। अब हम लोग प्रकाशित वाक्य में आपको सिर्फ वही चीज़ बताऊंगा जो ब्रदर ब्रैनम के लिए लिखी है और अनदर एंजल के लिए लिखी। और ये अनदर एंजल अलग नहीं होगा। जो ब्रदर ब्रैनम ने कोई सुपर सीट कोई नहीं कर सकता, है ना। अब अनिल के कहने के हिसाब से हमारे जो अनिल ब्रदर है वो क्या कहते हैं कि 8वां एंजल नहीं हो सकता। ये बात 100% सही है। लेकिन बाइबल के अंदर में 8वां एंजल नाम नहीं दिया गया है, लेकिन उसको कौन सा फॉर्म दिया गया? अनदर एंजल, क्योंकि वहाँ अगेन अगेन लिखा है, वन टाइम एंड अगेन। अब प्रकाशित वाक्य के अंदर में भेद ये आज ही मेरे को रिवील हुआ। इससे पहले मैंने सबसे स्टार्टिंग में क्या बात बताया कि ये जो प्रकाशित वाक्य पहले के अंदर में लिखा है, एंजल जो है प्रभु यीशु मसीह है। और ब्रदर ब्रैनम को बराबर बोला कि ये ब्रदर ब्रैनम। दूसरा है जो है एंजल जो यूहन्ना को दिखाएगा, मेरे को लगा कि एंजल ऑफ द लॉर्ड यानी प्रभु यीशु मसीह होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। फिर मेरे को खुदावन ने दिखाया कि बेटा वो सर्वेंट्स लिखा है वहाँ पे, गिवन टू हिम एंड द एंजल सिग्निफाइड एंजल के बीच में सर्वेंट्स लिखा है। तो खुदावन विलियम मैरियन ब्रैनम को देगा, लेकिन ये दो जो सेवक है, सेवक लिखा है वहाँ पे, नंबर नहीं दिया गया, सेवक लिखा गया है। तो ये जो 2 सेवक होंगे खुदा का काम करेंगे, क्योंकि एक एल्डर 5वें अध्याय में है, दूसरा एल्डर 19वें अध्याय में एक एल्डर के सामने झुकता है, 22वें अध्याय में दूसरे के अंदर में झुकता है। 17 में एंजल 7वां एंजल बात करता, 18 के अंदर में 18 अध्याय के अंदर में अनदर एंजल सारे वेद को समझाता है। और हमने अभी पढ़ा इंग्लिश के अंदर में 16वें अध्याय के अंदर में, तीसरी और चौथी मरी फेंकने से पहले उसके अंदर में एक एंजल है जो समुद्र से आया हुआ एंजल है, और दूसरा है वो मंदिर से निकला हुआ है, फिर से आया हुआ है। तो ये दोनों बता रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो आप कर रहे हो, यानी जो क्रोध के प्याले उंडेले जा रहे हैं, तू बराबर न्याय कर रहा है। क्योंकि हमने संदेश दे दिया, 2 विटनेस है ना, याजक के कंधे के ऊपर में अपोर्ड रहता था 12 गोत्र के हिसाब से, और यहाँ पे 2 पत्थर रख रहे थे, ऑनियक्स स्टोन, और इस 2 पत्थर पे क्या लगे रहता था? 6 जनों के नाम, और इधर 6 जने, तो पूरे बोझ को वो संभालता था। वैसा ही 2 सेरब है प्रायश्चित के रखने के ऊपर में, और मूसा और इलायस है यहूदियों के लिए। वैसे ब्रैनम और अनदर एंजल दोनों साथ साथ चलेंगे। ठीक है। और फिर मोजेस और आरन, भविष्यवक्ता और प्रीस्ट। तो यहाँ पे मेरा जो अनदर एंजल का जो काम है वो एज अ प्रीस्ट है, क्योंकि वो धूपदान उसके हाथ में देता है, और वो सोने की वेदी में से अंगार लेके फेंकता है। फिर वो डायरेक्ट खुदावन को बोलते हैं कि ऐसा ऐसा कर कि अभी समय हमने प्रचार कर दिया, अब अंत का समय आ गया, और अभी ये जो मैं बोल रहा हूँ मेरा प्राइवेट इंटरप्रिटेशन नहीं है, बता दिया हूँ आपको, ये खुदावन की ओर से सारे संदेश जा रहे। अभी आपको समझाता हूँ भेद, आज तक नहीं खुला, मुझे भी अभी ही ये हफ्ते पता चला, वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके पहले मैंने कुछ चीज़ें बोला था, लेकिन 100% राइट नहीं बोला था। आज मैं 100% आपके सामने में रखूँगा। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य का मतलब क्या होता है? प्रकाश आना, कुछ चीज़ जो छुपी है वो प्रकाशित वाक्य के अंदर में खुलेगा। और ये सबसे बढ़िया और आखिरी किताब है, और अब फाइनल है ये आपके लिए, फाइनल यानी फाइनल टेस्ट देते ना आप लोग, है ना,
तो ये फाइनल एग्ज़ाम है आपका, इसमें आपको पास होना है। और इसके अंदर में आपको सपोर्ट मिलेगा 2 एंजल, और वो 2 एंजल कौन है मैं दिखाता हूँ। जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया, किसे दिया? उसे दिया। वो इंग्लिश वाली बाइबल कहाँ है, छोटी वाली? तो इंग्लिश के अंदर में हमको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, और इसके अंदर में भी समझा दूंगा आपको, चिंता करने की कोई बात नहीं। ये देखो क्या लिखा है इसके अंदर में, प्रकाशित वाक्य, ठीक है। अब इसको समझाने के लिए कोई तो होना समझने के लिए, क्योंकि इधर उधर कुछ लिखा हुआ है। अब मेरे को इसको ये एक पैराग्राफ को समझने के लिए बहुत कठिन समय लग गया, लेकिन खुदावन ने आखिर के अंदर में समय में पूरा परफेक्शन दे दिया। अब मैं इसको बड़ी बात ही देख रहा हूँ, और मैं आपको भी समझाऊंगा क्या लिखा है। पहला तो शख्स हो गया जो उसने दिया। अब वो मैंने सही बोला ब्रदर ब्रैनम, परमेश्वर ने इसलिए दिया उसे कि अपने दासों को, अपने दास नहीं, हाँ प्लूरल लिखा है। अब यहाँ नंबर नहीं दिया है, पर अपन गारंटी के साथ में बोलते हैं 2 जन। अभी मैंने समझाया क्यों 2 जन। और प्रकाशित वाक्य 4थे अध्याय के अंदर में 14 चैप्टर के अंदर में 3rd एंजल फॉलो देम। पहला एंजल फॉलो हो रहा, दूसरा हो रहा, और 3rd एंजल फॉलो। वो 3rd एंजल के बारे में अभी रेवलेशन नहीं आया, बाद में बताऊंगा। ये आपको देख लो, यहाँ पे 2 जन है मेन। पहला है उसे दिया ताकि अपने दासों को जो बातें जो शीघ्र होना है, तो दास लोग क्या करेंगे, सेवक लोग, सर्वेंट लोग क्या करेंगे। पहला सर्वेंट कौन था, समझा? दूसरे वाला भी यही समझाएगा। अब आप बोलेंगे, अब अनिल बोलेगा हमको वचन में से बताओ, वचन के बाहर हम नहीं जाते, आप हमको वचन में से दिखला दो। तो मैं पहला आपको 10:7 प्रकाशित वाक्य 10:7, वरन 7वें दूत के तुरी फूंकने के समय में, शब्द के दिनों में, परमेश्वर का गुप्त मनोरथ उस समाचार के अनुसार जो उसने अपने दास भविष्यवक्ताओं को दिया, है ना। इसमें क्या है इंग्लिश में, 10:7, डिक्लेयर अनटू द सर्वेंट्स द प्रॉफिट। यहाँ पे दास गलत लिखा है, दासों लिखना है। हिंदी के अंदर में क्या है, वही मैं इसके लिए इंग्लिश का खोला, सर्वेंट्स द प्रॉफिट लिखा है। क्या लिखा है बेटा? और हिंदी में क्या लिखा है, दास भविष्यवक्ता। ये गलत लिखा है, इंटरप्रिटेशन ही पूरा उल्टा हो जाता। दासों को भविष्यवक्ताओं को दिया, यानी ब्रैनम बोलेगा, लेकिन समझाएगा कौन, दासों भविष्यवक्ताओं नहीं, अनदर नहीं, 2 जन समझाएंगे। ये एक कैसा लिखा है, 7वें दूत के को उसको दे देगा वो। मैं यहाँ पे पहला लाइन पढ़ा, उसने खुदावन ने उसे दिया। उसे किसको दिया, जो समझाएगा किसको। और खुदावन ने किसको दिया, 2 सर्वेंट को, जो प्रॉफिट है। तो यहाँ पे भी ब्रैनम जब बोलेगा तो वो बोलेगा और सर्वेंट लोग सुनेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है, गुप्त मनोरथ खुलेगा जो उसने अपने दासों भविष्यवक्ताओं को दिया पूरा हो। अनटू द सर्वेंट्स द प्रॉफिट, इंग्लिश में क्या लिखा है, और यहाँ पे भी लिखा है ना, सर्वेंट को समझाएगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। अब मैं आपके ये चीज़ और लेके जाना चाहता हूँ कि ये वहाँ पे कोलन लग गया। अब यहाँ पे सीन चेंज होता है। क्या सीन चेंज होता है, और उसने, और लिखा है, और है ना, एक चीज़ हो गया अनिल, है ना। अब मैंने तो तेरे को बोला ये ले ले, पानी पी ले, फिर मैंने बोला ये और ले और ये और ले ले, यानी एक चीज़ हो गई। अब उसके बाद में दूसरी चीज़ आ रही है, पर उसमें क्या किया, अब और उसने अपने दूत, सरदूत को काट देना, दूत एंजल लिखा है इंग्लिश में, दूत को भेज के उसके द्वारा दास यूहन्ना को। अब आप बोलेंगे भैया हमको बाइबल में से बताओ, है ना अनिल, बोलेगा ना, बिना बोले तो विश्वास नहीं करेगा अनिल, है ना। अनिल बिल्कुल
ऐसा विश्वासी है कि जब तक बाइबल के अंदर मैंने दिखाया विश्वास, अब मैंने ब्रदर ब्रानम का तो बता दिया, अब मेरा बताना चाहिए। देखो यहाँ पे लिखा है 22वें अध्याय के अंदर में सेम टू सेम लिखा है। And there shall be no more curse, but the throne of the God and the Lamb shall be in it, and his servants shall serve him। है ना, 6वीं आयत के अंदर में लिखा है, and he said unto me, these things are faithful and true। है ना, and the Lord God of the holy prophets sent his angel। है ना, मैंने क्या लिखा पढ़ा कि उसने सिग्निफाइड बाय एंजल, अपने एंजल को भेजेगा। अब यहाँ पे क्या लिखा है, सेंट इज एंजल टू शो ऑन टू हिज सर्वेंट्स। वह एंजल भी क्या है, सर्वेंट है, लेकिन एंजल को खुदावन मैसेज देगा, ब्रदर ब्रानम को मैसेज देगा, एंजल को बदल देगा, लेकिन दोनों सर्वेंट बन के वही मैसेज को दुनिया तक उजागर करेंगे। सर्वेंट द प्रॉफिट विथ मच शॉर्टली कम टू पास, और ये थोड़े समय में होने वाली है बात। सेम टू सेम यहाँ लिखा है कि नहीं। तन इस सेंटर उसने भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताए, जिनको परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही, अर्थात जो कुछ उसने देखा था उसकी गवाही दी। ठीक है ना, क्योंकि ये सारी बातें क्या होने वाली है, शीघ्र। और ये भी 22वें अध्याय में भी क्या पढ़ा उसने, क्योंकि ये बातें क्या होने वाली है, शीघ्र होने वाली। आ रहा है कि नहीं, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ये चीज़ आपको समझ गया कि उसने उसे दिया, ब्रदर ब्रानम को दिया, और उसने एक और एंजल को भेजा जो उसको सिग्निफाई करेगा, देखेगा। लेकिन बीच में उसने कहा कि मैंने ये सारी बातें अपने सेवकों को दिया है। तो एक सेवक नहीं होगा जो प्रकाशित वाक्य को समझाएगा, पूरे इसको समझाएगा। अब आगे देखेंगे हम लोग दूसरी आयत में, जिससे परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही। गवाही कौन देगा, विटनेस। ये दोनों खड़े हैं यीशु मसीह की गवाही देने के लिए। देखा कैसा भेद छुपा है, कंटिन्यूएशन में आ गया वो। अर्थात जो कुछ उसने देखा था, किसने, यूहन्ना ने देखा था, कि ये दोनों क्या बोल रहे हैं। तो प्रकाशित वाक्य के पूरे के अंदर में यूहन्ना के कंधे पे हाथ रखता है ना, एक एल्डर रखता है और दूसरा एल्डर भी रखता है, पूछता है क्वेश्चन। तो ये सारा भेद कौन दिखा रहा है, यूहन्ना ने बोला मैं देख रहा हूँ, तो कौन दिखा रहा है, ये दो सेवक खुदावन के। और वो दो सेवक के ऊपर में लिखा है उसे दिया, और नीचे में लिखा है एंजल को भेज के अपने चर्चेस के अंदर में भेजा है उसने। और प्रकाशित वाक्य 22 के अध्याय में भी लिखा है कि उसने अपने एंजल को भेजा है ताकि चर्चेस में, आखिरी के समय में चर्चेस के अंदर में ये संदेश जाए, है ना। तो अर्थात जो कुछ उसने देखा था उसकी, तो ये दोनों क्या करेंगे, प्रभु यीशु मसीह की गवाही सामने रखेंगे, और प्रभु यीशु मसीह उनका सहारा लेके अपने आप को दर्शाएगा। तो ये लोग ओपनली प्रभु यीशु मसीह को, जो बात छुपी हुई थी डिनोमिनेशन के अंदर में, ब्रदर ब्रानम ने ट्रिनिटी को कैसा पर्दाफाश किया, और बैप्टिज़म के नाम पे, प्रभु यीशु मसीह के नाम पे बैप्टिज़म को उसने उजागर किया। और साम्राज्य जो है कैथलिक चर्च का, बेबीलोन का, और कैथलिक चर्च का और डिनोमिनेशन का, सारे ट्रिनिटियन को क्या कर दिया उसने, 4थे अध्याय में बाबुल गया, 17 अध्याय में बाबुल गया, 18 अध्याय में तो पूरा, और उसके ऊपर में पाट रखा, चक्की का पाट रख के उसको हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। ठीक है ना। आगे देखो, धन्य वो है जो भविष्यवाणी की किताब को पढ़ता है। धन्य वो है जो, बाकी तो पूरा इग्नोर कर देते, क्या करते, समझ में नहीं आएगा तो क्या पढ़ेंगे और क्या सीखेंगे और क्या प्रचार करेंगे। डिनोमिनेशन में एक किताब खुलती नहीं, थोड़ा थोड़ा ले लेते। कुछ होशियार लोग हैं
जो ब्रदर ब्रैनम को छुपाते हैं और अपना सामने लगा के उसको बोलते सेल्फ राइचियसनेस। इसको नहीं बोलते जो दिखा रहा है, हम सारा चीज़ दिखा रहे हैं सामने ओपन करके, छुपा रहे हैं क्या कि इसका लेके और फिर करके। मेरे पूरे संदेश जितने भी मैंने देता हूँ बाइबल पढ़ के और बाइबल पढ़ के, है ना। इन्होंने जो संदेश दिया वैसे ही दिया, मैंने भी वही संदेश वैसे दिया। कॉपी किया क्या मैंने? कॉपी किया क्या? नहीं किया, है ना। पर सिद्धांत वही रहेगा, प्रभु यीशु मसीह का ही संदेश देंगे हम, प्रभु यीशु मसीह को ही उजागर कर रहे। धन्य वो है जो इस किताब के वचनों को, एक लाइन तो ये हो गई, हाँ बेटा, एक लाइन तो ये हो गई, लेकिन दूसरी लाइन बहुत भयानक है, समझ के पार है, खतरनाक वर्ड है वो। और वो वर्ड बहुतों को समझ में नहीं आएगा और विश्वास भी नहीं करेंगे। वो वर्ड क्या है, वो लाइन क्या है? और वे जो सुनते हैं, जिसके कान है वो सुन ले। क्या सुन ले अनिल? क्या सुन ले? ये दो भविष्यवक्ताओं की बातें सुन ले, पूरा प्रकाशित वाक्य खुल जाएगा। जिस दिन तुम सुनोगे उस दिन प्रकाशित वाक्य का हर पन्ना आपके लिए ओपन हो जाएगा। ये पर्दा क्यों लगा है? अब अनिल ने पूछा क्वेश्चन में कि ये पर्दा क्यों लगा है। पर्दा इसलिए लगा है कि खुदावन ने मूसा को जो प्लान दिया था, नमूना दिया था कि मंदिर कैसे बने, ये पर्दा यहाँ लगा हो। पहला जो पवित्र स्थान था उसके सामने कि तुम वहाँ प्रवेश करने के लिए क्या लगता था? ऑर्डेंड वाला, लहू वाला लगाया हुआ याजक, और वही एंट्री लेता था इस मिलाप वाले तंबू के अंदर में। तो सारे याजक जाते थे, हारून और उसके बेटे और उसके जितने भी ऑर्डेंड किए हुए थे, है ना। लेकिन साल में एक बार परम पवित्र स्थान में याजक एक बार जाता, और वो हारून की रीति के एल्डेस्ट होता था, एल्डेस्ट पलौटा। कि प्रभु यीशु मसीह पलौटा है ना, प्रभु यीशु मसीह का पलौटा है ना, कहाँ लिखा है? और पलौटों को फिर से जगत में लेके आता, और पलौटे से ही सारी दुनिया को फर्स्ट बॉर्न ऑफ, इसी के लिए याजक पलौटा होना चाहिए। याजक क्या होना चाहिए? पलौटा होना चाहिए। तो वो क्या करता है? लाल कलर को और उसका लहू 7 बार और वेदी पे जलाया जाता है। वो सब चीज़ है जो याजक को, और प्रकाशित वाक्य भी वैसे ही रहेगा। जो नमूना खुदावन ने मूसा को दिया, और ये यर्दन नदी पार किए, पाप इधर था ना, जैसे यर्दन नदी पाप खत्म हो गया, उनको प्रॉमिस लैंड मिल गया। तो हमारे लिए जो यर्दन क्रॉस करना है ना। और ये पर्दा जब तक हटेगा नहीं, जब तक हमारे पाप, मैंने आपको दस्तावेज बताया, दस्तावेज क्या होता है पहले मालूम था क्या? हम वही पाप पुण्य में लगे रहते कि साफ रहो, अच्छा रहो, ये रहो, वो रहो, लेकिन दस्तावेज तो आपको क्लीन चिट देता है। ऐसा आपके पाप धोता है कि जिंदगी तक, जब तक रैप्चर में ना जाए तब तक वो लहू आपको संभाले रखता है। इतना उज्जवल तरीके से आपको वो खरीद लेता है, रिडीम कर लेता है ना। ठीक है। धन्य वो है जो सुनते हैं। क्या सुनते हैं? ये दो सर्वेंट लोग जो समझाएंगे ना, वो समझना है और सुनेंगे। इसके लिए पढ़ तो लेंगे आप, समझाने के लिए सुन लो, समझने के लिए सुन लो। वेरी गुड अनिल, बड़ा इंटरेस्ट ले रहा है, वेरी गुड। यही चीज़ होना, मेरे को तड़प होना आपके अंदर में, खुदा की भूख होना, खुदा को जानने की। और जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय बहुत कठिन आने वाला है। अब यहाँ पे देखो बादलों पे आने वाला है। देखो वह बादलों के साथ आता है, ठीक है।
इसको विलियम मैरियन ब्रैनम के संदेश में आपने देखा, ये 7 चक्कर लगाया है ना, एंजल ने और प्रभु यीशु मसीह का चेहरा बना, ठीक है। अब यही चीज़ हमारे यहाँ पे भी होनी चाहिए। जो भविष्यवक्ता के सिर के ऊपर में डोम ऑफ द रॉक है, तो तुम्हारे याजक के ऊपर होना चाहिए। जो भविष्यवक्ता के कंधे के ऊपर में पिलर ऑफ फायर, तो तुम्हारे याजक के पास में भी होना चाहिए। उससे ज़्यादा भी खुदावन ने क्या किया है कि मुंह के अंदर में अंगारे भी दिया है, स्टार भी बनाया है, और मुंह के अंदर में अभी नहीं भी दिखेगा तो ये मत करो, ये मत करो, अविश्वास मत लाओ, क्योंकि आप मैसेजेस के अंदर में देख लो कितनी बार खुदावन ने ऐसी चीज़ को आने दिया है। जैसा नबी के होठ को शुद्ध करता है खुदावन, है ना, पाप को शुद्ध करता है, आवाज़ को शुद्ध कैसे करता है ना। अभी आपको यही इंग्लिश में जो संडे दिया संडे के अंदर में, उसके अंदर में देख लो, अब फ्लाइंग रोल दिख रहा है। स्क्रोल क्या कर रहा है? स्क्रोल को फ्लाई हो रहा है। फ्लाई होने के बाद में जो याजक के चेहरे के ऊपर में है, वो याजक का चेहरा प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा से, यानी अपने आप का, उसके होठ जो है ना, मूंछ और होठ के अंदर में बढ़ता है। फिर वो डव उस स्क्रोल को पर लेके जाता है, और उस स्क्रोल के अंदर में पहले इमेज खुदावन, मैं बैठा हूँ, और अपने मुझको उठा के उस स्क्रोल में डाल दिया, स्क्रोल के दान में उठा लिया। उठाने के बाद में उसके पीछे में डव लगा दिया, डव के बीच में बाद में वो जो याजक है उसके मुंह में धुएं का बादल डाल दिए, ये बताने के लिए कुछ चेहरा प्रभु यीशु मसीह का कभी काली दाढ़ी और कभी सफ़ेद दाढ़ी के अंदर में खुदावन ने अपने आप को उजागर किया। और फिर क्या किया, डव और स्क्रोल, और फिर वो डव क्या करता है याजक के चेहरे के ऊपर, और फिर वो जाके, ये सारे साइन है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, और ये कुछ मेरी वाह नहीं है, काइंड इन्फॉर्मेशन जो खुदावन अपने आप को अभी तक छुपाए रखा था, आज हमारे यहाँ पे आप देख लो। तो फिर यही धुएं के बादल के अंदर में हमारे इस टैबरनेकल के अंदर में प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को दर्शाया, है ना। और याजक को 1957 के अंदर में भी उसकी आंखें क्या थी, नीली नीली, और ऐसा पॉइंटेड दाढ़ी है। तो सेम चीज़ के अंदर में वही इमेज एक दिन खुदावन ने मेरे को झिंझोड़ के उठाया, जैसे जकारिया नबी के समय में याजक को उठाता है ना, उठाया, फिर मेरे को बताया कि भैया जो 1957 के 57 के अंदर में जो ब्रदर ब्रायन के टैबरनेकल के अंदर में जो प्रभु यीशु मसीह का चेहरा था, वो तेरे इसमें अंदर में जो आया वो देख ले, दोनों मैच कर ले। तब मैंने फिर कंफर्मेशन के साथ में बोला कि ये जो धुएं के बादल के अंदर में खुदावन ने अपना याजक के चेहरे के ऊपर में अपने आप को दर्शाया, वो प्रभु यीशु मसीह का ओरिजिनल चेहरा है। आज बड़े बड़े कीमत लगती है कि ये प्रभु यीशु मसीह का एक्चुअल चेहरा है, ऐसा दिखता होगा ऐसा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने दोनों चेहरे अपने यहाँ पे दिखा दिए। एक तो चेहरा उसकी काली दाढ़ी भी दिखेगी, दूसरा आपको वही चीज़ के अंदर में सफ़ेद दाढ़ी है, ने वो पुत्र भी वही है और पिता भी वही है। वन सिंगल पर्सन गॉड एंड इज 3 रोल। अब हम लोग इसको 4th चैप्टर में देखेंगे। 4th चैप्टर के अंदर में कैसा लिखा है कि इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखा कि स्वर्ग में एक खुला हुआ द्वार हुआ है, और जिसको मैंने पहले तुरी के शब्द से अपने साथ बातें करते हुए सुना था, वो कहता है यहाँ ऊपर आ जा। ये कौन है? जो मुझसे पहले बातें करता था। और हमने देखा है कि ये 2 सेवक होंगे जो आखिरी की समय की बातें क्या करेंगे। क्या लिखा है यहाँ पे? दिया कि अपने दासों को वो बातें जिसका शीघ्र होना आवश्य है दिखाए। शीघ्र होना है अवश्य दिखाए, तो दिखाएगा कौन? 2 सर्वेंट। अब यहाँ अपने को लगता था कि इसको किसने, एंजल ने उठाया, और ये हमारे सर्वेंट्स हैं जो भविष्यवक्ता है उसने, और अनदर एंजल ने भी, क्योंकि ये 4थे अध्याय में जो हो रहा है उसका विवरण वो बता रहे हैं। ये भी बताएगा और अनदर एंजल भी बताएगा, दोनों एक ही चीज़ को बताया। तो यूहन्ना क्या करेगा? तो यूहन्ना ने पहले इसे भी बताया और फिर दूसरे एंजल को भी सपोर्ट किया उसने।
कैसा ये दिखा था। और 5वें अध्याय के अंदर में आ जाओ। 5वें अध्याय के अंदर में हमने देखा है कि बलि एक खुदावन का है जिसके हाथ में क्या है, खुली, जिसके अंदर में बंद किताब है। अब मैंने आपको बताया बंद किताब क्या होता है, पुराना, उसके अंदर में क्या लिखा है, मृत्यु छुपी हुई है। गले में क्या लगा है, यानी पट्टा लगा है, वहाँ से निकलने की कोशिश नहीं करते। तो दस्तावेज जो है वहाँ से निकलने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि जब तक आप अपनाएंगे और विश्वास नहीं करेंगे तब तक आपका बंधन खुलेगा नहीं। अब हाथी को पतली सी रस्सी से बांध के रखेंगे, है ना, संकल से बांधने के बाद में एक पतली सी रस्सी से बांध के रखेंगे, हाथी वहाँ से निकलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसको लगा है कि मैं अभी भी बंधन में पड़ा हूँ, जबकि वो संकल को तोड़ के निकाल सकता है, इतनी ताकत और उसकी बल है उसके अंदर में, लेकिन उसकी सोच। वैसे ही लोगों को लगता है आज भी बंधन में है, और लोग हमको बंधन में डालते। अरे हम बंधुआई वाले लोग ने आज़ाद, खुदावन ने आज़ादी दे दी, अब हमको नरक का और इसका डर नहीं लगता कि हमारी चाल अलग है। स्वर्ग के देश के अभिलाषी है हम लोग। कौन से देश के? स्वर्ग देश के अभिलाषी है। पहला फल है प्रभु यीशु मसीह की, है ना, चुने हुए। तो अब यूहन्ना रो रहा है। फिर क्या हो रहा है कि एक एल्डर आके उसके कंधे पे क्या करता है, फिर वो बोलता है कि तब मैंने उस सिंहासन के चारों प्राणियों, उस प्राचीनों के बीच में से एक वध किया हुआ मेमना मैंने देखा, है ना। फिर ये 5वें अध्याय के अंदर में जो हिंदी के ट्रांसलेशन में एक में लिखावट है और इंग्लिश के ट्रांसलेशन के अंदर में आपको फ़र्क नज़र आएगा। 5वें के अंदर में क्या लिखा है, ये देखिए, छठवें आयत में क्या लिखा है, और उस सिंहासन के सामने मानो बिल्डर था। ये तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों के बीच में, है ना, और मानो एक वध किया माना खड़ा हुआ देखा। तो यहाँ पे कुछ मज़ा नहीं आ रहा। इंग्लिश में क्या लिखा, बिहोल्ड। इंग्लिश में कैसा लिखा है बेटा? बिहोल्ड का मतलब क्या है? ऑब्जर्व। अरे अरे वाह, कुछ तो भी ऐसा दृश्य देख रहा है वो। क्या देख रहा है वो, है ना, कि एक एल्डर आ रहा है और उसके कंधे पे आ रहा है, बिहोल्ड, एंड लो इन द मिस्ट ऑफ द थ्रोन एंड द बीस्ट एंड इन द मिस्ट ऑफ द एल्डर्स, एक वध किया हुआ मेमना उसने आगे हुए देखा। और इसके पहली वाली आयत में, 5वीं आयत में क्या लिखा है, एंड वन ऑफ द एल्डर्स सेथ अनटू मी, वीप नॉट, behold the lion of the tribe of Judah, the root of David hath prevailed। अब यहाँ पे लिखा है कॉन्कर्ड, लिखा है अभी के इंटरप्रिटेशन के अंदर में। प्रीवेल्ड में और कॉन्करर में फ़र्क है। कॉन्कर्ड क्या है, पहले से ही राजा है। यहाँ प्रीवेल क्या है, जिसने अपने आप को शून्य कर दिया, ख़त्म करने के बाद में फिर वो मर के प्रीवेल्ड। यहाँ पे ये एल्डर हो गया, है ना। और क्योंकि वन ऑफ द एल्डर क्यों बोला उसने, किसी एक, क्योंकि 2 एल्डर होना चाहिए। सर्वेंट इसके लिखा है कि 2 सर्वेंट होना चाहिए। प्रॉफिट इसलिए गया कि ये भविष्यवाणी करेंगे। सर्वेंट्स भी बोला उसको, और क्या बोला, प्रॉफिट्स भी, क्योंकि ये सर्वेंट भी रहेंगे और क्या करेंगे, भविष्यवाणी भी देंगे। ठीक है। फिर क्या हो गया 11वीं आयत में देखो। पहला तो विलियम ब्रैनम ने पूरा संदेश समझाया, 11वीं आयत में भी ये समझाएगा। और फिर 11वीं आयत में क्या बोलता है, बिहोल्ड, जब मैंने देखा, फिर से वो चीज़ देख रहा है कि कुछ नई चीज़ सामने आ गई। अब ये एक चीज़ समझ लो अनिल, देखो प्रकाशित वाक्य एक ही फ्लो में लिखा है, और वो रिपीटेशन नहीं करेगा और एक ही डबल बार नहीं बताएगा। वो एक को एक बार देख लिया, एक ही बार बात करेगा, है ना। तो पूरा एक ही सीन है एक्ट के अंदर में, रिपीटेशन करने का कोई गुंजाइश नहीं है यहाँ, क्योंकि ये एक अलग चीज़ है, एक अलग पर्सन है जिसके बारे में बता रहा है। तब मैंने देखा, तो बिहोल्ड 11th आयत के अंदर में इसमें क्या लिखा है,
एंड आई beheld एंड आई heard a voice of many angels. अब वो जब ये यहाँ से दुल्हन तैयार हुए, इसको पढ़ेंगे आप तो दुल्हन वीणाएं बजा रही है, धूप बजा रही है, और उनको उसने याजक और राजा बना दिया। उसके बाद में फिर से रिपीटेशन वही करेगा क्या? फिर से वो बोलेगा कि मैंने देखा क्या? पहले उसने बोला मैंने देखा, फिर से वो बोलेगा क्या वही चीज़ मैंने देखा? क्योंकि उसने पहले व्यक्ति को देखा तो उसने बोला मैंने देखा, फिर उसने बोला कि मैंने देखा दूसरे व्यक्ति को। जब मैं 11वीं आयत, जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उस प्राचीनों के चारों ओर बहुत से दूत थे। यहाँ पे भी बहुत सारे दूत थे, वो सारे 24 है, वो रिपीटेशन है। और वे ऊँचे शब्द से कह रहे थे कि मेमना ही सामर्थ्य है। यहाँ पे लिखा है वही सामर्थ्य है ना, और वो वही किताब खोलेगा और उसी में सामर्थ्य खोलने की। और फिर मैंने देखा पृथ्वी और उसके नीचे और समुद्र सिरची हुई वस्तुओं को और जो कुछ उसमें है, ये कहते सुना, जो सिंहासन पर बैठा है और जो मेमना है, धन्यवाद और आदर और महिमा। और यहाँ पे भी वही कर रहे हैं लोग, उसको क्या कर रहे हैं? धन्यवाद दे रहे हैं और महिमा दे रहे हैं और वीणाएं बजा रहे हैं। और सारा जो ब्रदर ब्रैनम के अंदर में दुल्हन तैयार कर रही है, वीणाएं और धन्यवाद दे रही है, वैसा ही ये एक और जन है जिसके अंदर में लोग बहुत सारे भीड़ है और वो भी लोग और धन्यवाद दे रहे। अभी अपने पास में थोड़े से जन है, आगे चल के जाएंगे लोग, समझेंगे। ठीक है, अब हम लोग 6वें अध्याय में क्या हो गया कि मोहरे चालू है ना। अब मोहरे हम तो मालूम है कि प्रभु यीशु मसीह ने उस किताब को खोला और मोहरे के जरिए से क्या हो गया, यूहन्ना ने लिखा है कि ब्रदर ब्रैनम ने मोहरों को खोला और सारी चीज़ को बताया। लेकिन 6वें मोहर और 7वीं मोहर के बीच में एक सीलिंग है। 7वीं मोहर और के बीच में दुनिया ख़त्म होने से पहले एक सीलिंग है। 2 जनों की सीलिंग है। किसकी? ब्रैनम की और अनदर एंजल की। देखो कैसा लिखा है। तो 6वीं मोहर 8वें अध्याय में है ना, और 6वीं मोहर 6वें अध्याय के आखिरी में, और 7वीं मोहर 8वें अध्याय के पहले अध्याय में, पहली आयत में। उसके बीच में क्या है? सीलिंग है। इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोने पर 4 दूत को खड़े हुए देखा, जो पृथ्वी के चारों ओर हवाओं को थामे हुए थे, ताकि पृथ्वी और समुद्र या किसी पेड़ के ऊपर में हवा ना चले। तो यहाँ पे क्या हो गया है? एक रुकावट आ गई है। रैप्चर अभी तक हो जाना था, रैप्चर अभी तक, क्योंकि सीलिंग अभी बाकी है। एक एंजल की सीलिंग हो गई है, दूसरा भी सीलिंग करेगा, इसका भी संदेश जाएगा, दुनिया तक जाएगा, कोने कोने तक जाएगा। कैसे जाएगा? यूट्यूब के माध्यम से सारे दुनिया वाले देखेंगे। अब ऐसा होगा कि हमको अभी अपलोड करने के बजाय डायरेक्ट इसको हम लोग ऑनलाइन करेंगे, ताकि अभी जो हो रहा है वो दुनिया तक देखेगा। इसके अंदर में कोई करेक्शन नहीं, कोई डिटेक्शन नहीं, कोई ये नहीं। तो आप इससे समझ लेंगे कि ये सारी बातें प्रभु यीशु मसीह की ओर से है। फिर मैंने एक और दूत को, सरदूत ने लिखा है, दूत एंजल को जीवते परमेश्वर की मोहर लिए हुए पूरब से आते हुए देखा। एंड आई सॉ अनदर एंजल, इंग्लिश में कैसा लिखा है? एंड आई सॉ अनदर एंजल हैविंग द सील ऑफ द लिविंग गॉड। अब ये अनदर एंजल को काय की सीलिंग है? 25 साल पहले कान के ऊपर में खुदावन ने आग के खंभे से सीलिंग किया, तब तक अपने को मालूम नहीं था। आज खुदावन ने कहा है कि ये उसके कान पे जो सीलिंग है, तब पता चला कि कहा कि कुछ फोटोग्राफ के अंदर में, हमारे इस संदेश के अंदर में 4 खुदावन ने एंजल्स को और उसको उड़ते हुए कोने में दिखाया है। तब मुझे समझ में आया कि ये मेरे लिए है, और खुदावन मुझको विजुलाइज करा रहा है कि बेटा वो 4 एंजल मैंने किसके लिए थामा है? तेरे संदेश की वजह से। क्योंकि जब मैंने उस फोटोग्राफ को दिखाया ना, तो आप देखेंगे कि अंगूठे से धुएं का बादल
बहुत लाइटली दिखता है वो। तो कबूतर जो है वो, ये जो 4 एंजल है उनको वहाँ पे क्या कर रहा है, बादल के इससे थामा हुआ है, और फिर वो एंजल उड़ता हुआ, फिर वो दूसरा सीन बताता है। तो ये सारा चीज़ होने के बाद में तब मेरे समझ में आया कि ये खुदावन मेरे बारे में, और ये मेरी वाह आई नहीं है। मैं अपने आप को सेल्फ राइचस या ये नहीं बता रहा, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, संदेश, इंटरप्रिटेशन बता रहा हूँ। इट इज़ नॉट माई प्राइवेट इंटरप्रिटेशन फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। ये मेरा निजी मामला नहीं है, ये नहीं है, खुदा का काम करने वाला आदमी हूँ, झूठ नहीं बोलूँगा, है ना। और ये कुछ पैसा कमाने वाला दरिया, सारा काम फ्री में करते हैं हम लोग यहाँ से। ये भी आप फ्री जा रहा है सारा, कुछ चीज़ देना पड़ रहा है क्या किसी को? फ्री में है। खुदावन ने फ्री में आपको मोल ले लिया, है ना। क्या किया? मोल ले लिया। लेकिन आपको क्या करना है? थैंक्स गिविंग के लिए अपने आप को भेंट चढ़ाना है, थैंक्स गिविंग देना है खुदावन। क्योंकि बिना थैंक्स गिविंग के आप अपने आप को साबित नहीं कर पाएंगे कि जो बातें हो रही है वो खुदावन की ओर से सच्ची है। इसके लिए आपको अपना योगदान देना है। देंगे कि नहीं देंगे? ठीक है ना। पर भीड़ कम होते जा रही है। इस बात का सबूत है कि रैप्चर थोड़े से ही जनों का होगा, भीड़ का नहीं होगा। कितने जनों का होगा? क्योंकि वो 50 से गिनती करते करते कहाँ तक आ गया था? 10। फिर खुदा ने कमून करना बंद किया उससे, वो 5 तक आया था, है ना। 10 भी नहीं रहेंगे, सिंगल डिजिट रहेगा। रैप्चर में जाने वाले लोग कितने रहेंगे? सिंगल डिजिट वाले ही रहेंगे। तो उसके ऊपर में सीलिंग रहेगी, और उन चारों दूतों के उन्होंने पृथ्वी और समुद्र की हानि मत करना का अधिकार दिया गया था, जब तक, क्या लिखा है 3री आयत में, जब तक हम, देखा मैं क्या बता रहा हूँ? पहला अध्याय मैंने पढ़ा ना अनिल, पहली आयत पढ़ा था, सर्वेंट्स बता दिया था 2 जन। तो यहाँ पे क्या लिखा है? जब तक हम, ये 2 जन जब तक सीलिंग ना करेंगे, इसलिए रैप्चर का। आनंद आ रहा है कि नहीं, कि नींद आ रही? और लो 15-20 मिनट और। जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मोहर ना लगाते, तब तक पृथ्वी, समुद्र और पेड़ों की, तो एक पैर समुद्र में और एक पृथ्वी पे है, और पेड़ खुदावन के जीवित लोगों को दर्शाता है, जान रहती है जिनके अंदर। हरा पड़ा पेड़ किसको दिखाता है? अब देखो हम आगे पढ़ेंगे कि एक तो इसके बाद मैंने दृष्टि की 90वें अध्याय में और एक जाति और कुल और बहुत सारे लोगों को देखा, ठीक है ना। फिर क्या आता है कि ये जो भीड़ कैसे तैयार हुई? दोनों जन, हमने सीलिंग कर दी, और जिन पे सीलिंग की है बहुत सारे लोग हैं। देखो कैसा मैं आपके सामने में पूरा उजागर कर रहा हूँ, पूरा खेल जो है इधर उधर छुपा उजागर कर रहा हूँ। क्योंकि क्या है, ये 13वीं आयत में क्या लिखा है? फिर एक और एल्डर, प्राचीन, दोनों में से एक, बस एल्डर फिर यहाँ पे आगे नहीं दिखा है। एल्डर में से एक ने मुझसे कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है? ये पूछ रहा है। तो यूहन्ना उससे जवाब दे रहा है, किससे? दूसरा अनदर एंजल, क्योंकि अनदर एंजल आ गया ना यहाँ पे 7वें अध्याय में, जिसके ऊपर में जीवते खुदावन की मोहर होनी चाहिए, ठीक है। 8वें अध्याय के अंदर में जब आध घड़ी का सन्नाटा था, ठीक है ना, तो उसके अंदर में क्या हो गया कि तूरी फूकी जा रही है, मतलब हो गया फाइनल, मौत का बाजा बजने वाला है। खतरनाक समय है सब लोगों के लिए जो अविश्वास जतलाते हैं, क्योंकि प्रकाशित वाक्य के अंदर में अविश्वासी, वॉरमॉन्गर्स, झूठ के गढ़ने वाले, है ना, जो अपने आप को बताते और है कुछ नहीं,
If a person thinks himself to be something when he is nothing, he deceiveth himself. अगर कोई इंसान अपने आप को कुछ समझता है कि मैं कुछ हूँ, तो अपने आप से वो धोखा करता है। जिनके पास में अनाउंटिंग नहीं रहती, वो अनाउंटिंग वाले को बोलते भैया तुम सेल्फ राइचियसनेस वाला संदेश सुनाते। और जिनके पास में राइचियस, जिनके पास में खुदा का साइन है, चिन्ह है, और वो जब बता रहा है कुछ चीज़, तो क्या वो सेल्फ राइचियसनेस हो गया? जलन नहीं है तुम्हारे अंदर में। जो कोरार, दातान और अबीरम का कैरेक्टर आप लोगों के अंदर में, खुदावन ने कहा कि बिलाम एक ऐसा था जो मूसा को और उसके लोगों को क्या करता था? चैलेंज करता था कि नहीं? वो भी अनॉइंटेड था, है ना, लेकिन वो काय में गया? वो भीड़ थी उसके पीछे। अब बालक राजा का धन और दौलत और संपत्ति, बालक राजा था ना, उसको बोलता है ना जा इनको कोस, उसको ये संपत्ति और पैसे की वजह से क्या हो जाता वो? तो याजक लोग जितने भी पैसे कमाते हैं सब सतर्क रहना। ये अच्छा है रे भैया, अपन किसी के सामने कटोरा घुमाते नहीं, जो कुछ करते सब अपने दम पे करते, है ना। जिसको जो देना है वो देता है भले। तो बिलाम के अंदर में क्या रहेगी अनिल? चर्च का मार, मंदिर इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या इंपॉर्टेंट है बेटा? पैसा। जो तुम पैसा देते हो मंदिर में वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन मंदिर जिसके लिए पैसा आ रहा है उसका कोई इंपॉर्टेंट। तो क्योंकि तुमको मंदिर की चिंता नहीं है, तुमको काय की चिंता है? तो जितने भी पंडित वंडित जो भी है, हिंदू मुस्लिम जितने भी है, पास्टर और क्रिश्चियन के जितने भी हो, क्या काय का है? लोभ ना करने का। जो दिया खुदा ने उसमें सेटिस्फाइड, जो दिया उसमें सेटिस्फाइड। खुदावन आपको आशीष दे, है ना। खुदा हम सबको आशीष दे। फिर क्या हो गया है कि तूरी फूकने से पहले बेटा, बाजा बजने से पहले, कौन सा बाजा है ये शादी का बाजा नहीं है। फेस द म्यूजिक है ना, डेथ म्यूजिक है वो। कौन सी? मौत का बाजा है। काय का बाजा है? फिर मैंने एक और दूत को सोने की वेदी के धूपदान लिए हुए देखा, है ना। अब इसको आप गौर करने का, इसके पास में एक बार उसके बाद में धूपदान था, वो प्रार्थना है। दूसरे बार क्या किया उसने? धूपदान लिया। और तो यही प्रकार, ये चौथे अध्याय में जब आप पढ़ेंगे तो यही जो याजक है ये मंदिर में से निकला। पहले उसने खुदावन को बोला कि लवनी कर और लोगों का रैप्चर करा ले, तो ये पहले रैप्चर में चले गए। दूसरी बार फिर से वही दूत आता है हसूला लेके, तो ये जो याजक फिर ऑल्टर से निकल के आता है और फिर बोलता है कि ये दाख, पहले किसका? जब की खेती हो गई पेंटिकॉस्टल वाली, गए आसमान में। दूसरी खेती काय की है? दाखरस की। और दाखरस के गुत्ते काट और ख़त्म, क्योंकि इनका खेल अभी पूरे पापियों का नाश हो जाता है। तो चौथे अध्याय के अंदर में ये है ना। तो ये 8वें अध्याय के अनदर एंजल वाला काम कर रहा है कि नहीं याजक का? ये फुकट ही आया है, ये सेकेंड अनदर एंजल फुकट ही आया क्या? नहीं, कुछ काम लेके आया हुआ है ना। कुछ याजक का जो भविष्यवक्ता का काम जो अधूरा रह गया उसको वो, क्योंकि मूसा के पास में लाठी थी, वो लाठी किसको देता? आरोन को। और आरोन को क्या बोलता है? चमत्कार। तो दो जन का साथ होना जरूरी है ना। फिर जब तूरी फूकी जा रही है तो छठवीं तूरी और सातवीं तूरी, 11वें अध्याय में है, और ये जो तूरी है उसके अंदर में पाँचवीं के अंदर में पहला वो है ना, पहली मरी ख़त्म हो जाएगी। फिर छठवें तूरी के अंदर में दूसरी वो ख़त्म हो जाती है, वो 11वें अध्याय में है ना। और तीसरा कब ख़त्म होता है? चौथी तूरी फूकी जाने के बाद में। और फिर 15वें अध्याय के अंदर में प्लेग्स है, और वो वही प्लेग्स 16वें अध्याय के अंदर में क्रोध के प्याले के अंदर में डाल के धरती पे उंडेला गया। तो फिर वो दो याजक फिर से, एक तो समुद्र का एंजल आता है और दूसरा ऑल्टर से आता है। दोनों क्या बोलते हैं? खुदावन जो तू कर रहा है
सही कर रहे हैं आप, क्योंकि इन्होंने सुना नहीं, इन्होंने समझा नहीं। क्योंकि जोना को जब खुदावन ने भेजा, कहाँ भेजा था? तर्किश, तर्किश को भागा है, जबकि नीनावे को जाना था, है ना। तब वो क्या हवा धुंध से क्या हो जाता? इसको भेजा गया था, वो गया नहीं वहाँ पे, वो जहाज में जाके सो गया। और सब, और ये मस्त सोया, तो सब आंधी तूफान आए और बाढ़ और सब सामान वामान फेंके, ये हो गए। सब अपने अपने देवी देवताओं को प्रार्थना करने लगे, तो तू भी करना, तू काय को छुप के बैठा हो, खामोश। ये सब तुम्हारी देवी देवताओं का काम नहीं है, ये तुम्हारी देवी देवता का, ये मैं पापी जीवते खुदा के फरमान को आज्ञा न पालन करने के वजह से, सब मेरे वजह से, मेरे को उठाओ और फेंको, महाराज सब शांत हो जाएगा। क्योंकि जीवता खुदावन जो है वो सिर्फ क्रिश्चियनिटी के अंदर नहीं मिलेगा, जीवता खुदावन सिर्फ वचन के अंदर में मिलेगा आपको। फिर उसने प्रचार किया, जीवते खुदावन की बातें मानो और सुनो, नहीं तो निनावे राख हो जाएगा। तो क्या हो गया? उन लोगों ने विश्वास किया और निनावे बच गया। इसको बड़ा खराब लगा। खुदावन भेजा था मेरे को वार्निंग देने, और तो वार्निंग तो रह गई। इसी के लिए मैं डरता था, क्योंकि मैं बोलूँगा ऐसा हो जाएगा, राख हो जाएगा, होएगा नहीं तो मेरे को पड़ेंगी। फिर ये क्या करता है? एड़ी के पेड़ के नीचे वो, और एक ही रात में खुदावन उसको बड़ा करता। और उसके अंदर में छाए से क्या कर रहा है? मस्त। तो हम भी सब बैठे हैं, लेकिन हमको खुदावन झंझोड़ता है कभी कभी, बेटा जागो, घर के अंदर मत बैठो, शांत बैठो, चर्च आओ, खुदावन के संदेश को सुनो। फिर एक ही रात में खुदावन क्या करता? उस पेड़ को ख़त्म कर देता। फिर वो पछताता, रोता, इतना अच्छा झाड़ था, मैं छाया लेता था, और कितना था खुदावन ने, पछता रहा, रो रहा है। खुदावन बोला, तेरे को बड़ा पछताना आ रहा, तूने लगाया था, तूने फलाया फुलाया था नहीं ना, फिर क्यों रो रहा है? तो तू अफसोस कर रहा है कि निनावे देश को, जिसको मेरे को अपनाया, मेरे पे विश्वास किया और अपना पश्चाताप किया और संदेश में आ गए और सुनो, उनको मैंने नाश नहीं किया, तू इसके लिए पछता रहा है, तो और उसके लिए नहीं पछता रहा है जिसको मैंने बचा लिया, है ना। तब उसके समझ में आता कि खुदावन क्या है, बहुत बड़ा ज्ञानी गॉड है। उसके सामने हमारा अपनी बहसबाजी, क्वेश्चनबाजी और होशियारी ज़्यादा चलाना नहीं, ठीक है। 10वें अध्याय के अंदर में एक बलि दूत है, पढ़ने से बजाय आप पढ़ लेना, मैं सिर्फ मुझे बलि दूत है, उसका एक पैर समुद्र में, दूसरा और हाथ में 5वें अध्याय में खुली किताब है ना। और एक समुद्र पे रहने का मतलब कि एक एंजल प्रकाशित वाक्य के खुली किताब को, वही खुली किताब का भेद खोलेगा। दूसरा एंजल पैर कहाँ रखा है उसका? पृथ्वी पे। दूसरा एंजल क्या है? तो जन होंगे जो एक ही पुस्तक के बारे में बताएंगे, और वो खुली पुस्तक के बारे में बताएंगे। तो प्रकाशित वाक्य के 10वें अध्याय के अंदर में 7वीं आयत के अंदर में, वरन 7वें दूत के शब्द देने के दुनिया में जब वो तुरही फूकने होगा, तो खुदावन का गुप्त मनोरथ खत्म हो जाएगा, जो उसने अपने दासों को, भविष्यवक्ताओं को बताया। दासों मतलब यही दो जन जो ये ब्रैनम है, ब्रदर ब्रैनम और अनदर एंजल, दोनों उसको बताएगा, समझाएगा। ये दो सेवक है, कौन है? सेवक लोग कौन है? प्रॉफिट है और सेवक है खुदावन के, ये दो। फिर हम देखेंगे इसको 8वीं आयत में क्या लिखा है? जिस शब्द को मैंने स्वर से बोलते हुए सुना था,
वो फिर मेरे से बातें करने लगा। फिर बोलने की जरूरत क्या हो गई, एक ही सीन हो रहा है ना, एक सीन कंप्लीट हो गया ब्रदर ब्रानम का 7वें दूत के शब्द देने के दिनों में। उसके बाद में 8वीं आयत में जिस शब्द को मैंने स्वर से बोलते हुए सुना था वो फिर मेरे से, यानी ये जो अनदर एंजल है ये इससे बात करता है और ये भविष्यवक्ता से 2 जनों से बात करता है, लेकिन आपके समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे। लेकिन मैं आपको ये बातें समझाने की, वह फिर मेरे साथ बातें करने लगा। जो जो दूत समुद्र और पृथ्वी पर खड़ा है उसके हाथ में जो खुली पुस्तक है, ले पहले खुली पुस्तक है वो जो ब्रदर ब्रानम ने क्या किया, खोल दिया। 7 मोहरों की किताब और 7 कलीसिया काल और बहुत सारी किताबें जो है उसने बताया, खोल दिया। फिर क्या हो रहा है, फिर से जाएगा संदेश। मैंने दूत के पास जाकर कहा वो छोटी पुस्तक दे दे। या अनदर एंजल से बात हो रही है। उसने उससे कहा ले इसे खा ले। और वो कौन देगा, प्रभु यीशु मसीह। अभी मेरे पिछले संडे में विजन के अंदर में है, वो मैंने अपलोड किया हूँ, देख लेना। शॉर्ट वीडियो है 1-1 मिनट की। वह तेरे पेट पर कड़वा कहेगी और तेरे मुंह में मधु सी भर जाएगी। तो मुंह में मधु अभी आएगा कि नहीं आएगा, इस पुराने वाले संदेश में देख लेने का है ना। नहीं तो आप बोलेंगे तो बोल रहा है उसके मुंह में मधु नहीं है क्या, दिख रहा है क्या, नहीं ना। तो और दिखेगा लेकिन है, ये बात मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये बात 100% राइट है। मधु सी मीठी लगेगी कि नहीं। मैं वह छोटी पुस्तक दूध के हाथ से लेकर खा गया, है ना। तो वही संदेश जो ब्रदर ब्रानम बोले, वही संदेश मैं फिर से लोगों को बताऊंगा। वह मेरे मुंह में मधु सी मीठी लगेगी। जब मैंने उसे खा गया तो पेट में कड़वा हो गया, यानी लोग विश्वास नहीं करेंगे मेरी बात के ऊपर में, लोग विश्वास नहीं। तब मुझसे जो कहा गया, तुझे बहुत से लोगों को, जाति को, भविष्यवक्ताओं को और राजाओं के विषय में फिर से अब 11वें अध्याय में भी है, लग्गी उसके हाथ में दिया, बताऊंगा क्या क्या आएगा। क्योंकि 2 जने हैं जिसके जरिए से यूहन्ना बोलता है और बातचीत करता है, ठीक है। 12 एक्सप्लेन करूंगा, 13 एक्सप्लेन करूंगा, 14 के अंदर में फिर से ये आ गया है। फिर उसने क्या किया, 1,44,000 पे सीलिंग करी। सीलिंग करने के बाद में एक दुल्हन उसने देखी, ठीक है। और दुल्हन देखने के बाद में फिर उसने एक और दूत को आकाश पे बीच में से उड़ते हुए देखा। आकाश से उड़ते हुए कैसे देखा, अभी पीछे एपिसोड में आप देखेंगे कि खुदावन ने क्या किया, मैं सीट पे बैठा हूँ, एकदम स्क्रोल के अंदर में जो किताब है उसके अंदर में इमेज बना के मेरे को क्या किया, उठा लिया। उठाने के बाद में मैंने आपको एक्सप्लेन किया क्या 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 है करके। तो ये एक दूत होगा आकाश से बीच में से उड़ते हुए देखा, जिसके पास पृथ्वी पर के रहने वाले हर एक जाति, कुल, भाषा, लोग को सुनाने के लिए सनातन अंतिम संदेश होगा। लास्ट टाइम सुन लो, बजाय इसके कि मेरी क्या बोलते हैं, नालिश करे या मेरे को गलत साबित करे या मेरे पे हंसे। लोग हंस रहे हैं बोलते, लोग मजाक करे, ठट्टा करे, ये करे। नाव भी बन रही थी तो लोग हंस रहे थे, है ना। और इलीशा में भी लोग हंस रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे। तो भालू को बेच कर खुदा ने क्या किया, उन सारे बच्चों को ख़त्म कर दिया। क्योंकि ठट्टा और मजाक करना अनॉइंटेड पे बहुत भारी पड़ेगा। उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसका न्याय करने का समय क्योंकि थोड़ी देर बची है, ऐसा लिखा है ना। और जिसे स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए। और इसके बाद दूसरा अनदर दूत फिर से आया। फिर ये जो तीसरा है ना, ये इसके पीछे लगा, फॉलोड हिम। ये 9वीं आयत में तीसरा है, और वो इमेज टू द बीस्ट। इमेज टू द बीस्ट क्या है अनिल? मूरत, पशु की मूरत। पहला संदेश जाएगा, फिर दूसरा संदेश बाबुल के राज को ख़त्म करेगा,
ट्रिनिटी ख़त्म करेगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा, और वन गॉड के बारे में बताएंगे। तीसरा जो रहेगा वो क्या बता रहा है, इमेज टू द बेस, ये सब धर्म और सब इसको एक करेगा, उसमें कभी जाने की कोशिश नहीं करना। 15 और 16 के अंदर में है। 16 के अंदर में मैंने आपको बताया कि 5वीं आयत के अंदर में मैंने आपको बताया कि जब मैंने पानी के दूत को तीसरी मरी और चौथी मरी के बीच में 2 जन आ रहे, बता रहे हैं कि जो तू कर रहा है, जो लोगों के अंदर में तबाही हो रही है, सही कर रहा है, यू आर ए राइचियस गॉड। हे पवित्र जो है, जो था, तू न्यायी है, और तूने यह जो किया है वह न्याय किया है, सही किया है, क्योंकि उन्होंने पवित्र लोगों और भविष्यवक्ताओं का लहू बहाया है, और तूने उन्हें लहू पिलाया, क्योंकि वे इसी योग्य है, पनिशमेंट के योग्य है। सेम चीज़ 18 अध्याय के अंदर में अनदर एंजल भी सेम चीज़ बोलता है कि ये लोगों ने सताया है और लोगों को, खुदा के लोगों को मारा है। चौथे दूत ने अपने फिर मैंने वेदी पे यह सब सुना। फिर बोलता है वो, यानी सीन चेंज हो रहा है। फिर मैंने वेदी से ये सब सुना, हाँ हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे निर्णय ठीक और सच्चे हैं। पहले ब्रैनम ने भी बोला सही किया, इसने भी बोला सही किया। 17वें अध्याय में बाबुल के राज के बारे में, जिन 7 स्वर्गदूतों के पास भी 7 कटोरे थे, उनमें से एक ने आकर, ब्रदर ब्रैनम 17वें अध्याय बाबिलोन के बारे में एक्सप्लेन करेगा। फिर हम लोग आ जाए 18वें अध्याय के अंदर में, ठीक है, वही सेम संदेश बाबुल के राज के अंदर में कौन करेगा। इसके बाद मैंने एक और दूत, अनदर एंजल को स्वर्ग से उतरते हुए देखा, बड़े शब्द से अधिकार प्राप्त किए हुए, और पृथ्वी उसके तेज से चमक उठी, उसके ऊंचे शब्द से पुकार कर का गिर गया। बड़ा बाबुल गिरा, बाबुल के बारे में एक्सप्लेन करेगा, यहाँ तक कि 4वीं आयत में ये भी कहेगा कि फिर उसने स्वर्ग से एक और शब्द सुना, हे मेरे लोगों जो विश्वास करते हैं वो मेरे साथ आ जाओ, क्योंकि धूपदान किसके पास में है, याजक के हाथ में है। 8वें अध्याय के अंदर में धूपदान है, और 16वें अध्याय के अंदर में भी बचाने का काम कर रहा है खुदावन, है ना। 5वीं 6वीं और 7वीं आयत में हमने देखा, जो बचेंगे वो बचेंगे, बाकी का सबका नाश होगा। तुम्हें उसके पापों के भागी ना हो, और उसकी विपत्ति में से कोई भी तुम पर ना पड़े। 19वें अध्याय में अभी कट शॉर्ट करता हूँ कि उसने एक ऐसे एंजल को देखा जिसके पाँव के नीचे वो गिरना चाह रहा था। देखो उसको शुद्ध और चमत्कार महीना, ये दुल्हन के बारे में एक्सप्लेन किया। तब दूत ने मुझसे कहा, यानी ब्रैनम ने, एक एंजल ने मुझसे कहा, वो लिख कि धन्य वो है जो मेमने के ब्याह के भोज में बुलाए गए। फिर उसने मुझसे कहा, ये वचन परमेश्वर के सत्य वचन है, जो बोल रहा है वो, क्योंकि खुदावन की आशीष इनके ऊपर में। तब मैंने उसको दंडवत करने के लिए उसके पाँव पर गिरा। उसने मुझसे कहा, देख ऐसा मत कर। तो पहले बार एक के ऊपर में, अभी पूरा एक ही सीन पे हो रहा, दूसरी बार भी वो दूसरे के ऊपर में दंडवत करेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। फिर 21वें आयत के अंदर में हम देखेंगे कि 9वीं आयत, फिर मैंने 7 दूतों के पास 7 अंतिम विपत्ति से भरे हुए 7 कटोर के पाले, उनमें से एक मेरे पास आगे का है। फिर से विलियम मैरियन ब्रैनम 20वें आयत के अंदर में, 9वें आयत के अंदर में सारे प्रोग्राम को बता रहा है ना। लेकिन अब फिर 22वें अध्याय के अंदर में आ जाएंगे, तो ये जो है वो अनदर एंजल का खेल है। वो थोड़ा सा मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। थक गए क्या आप लोग? थक गए ना? जाना है घर, 5 मिनट और लेता हूँ, ताकि फिर से ये चीज़ ना लेना पड़े। नया संदेश के साथ में हम फिर चालू करेंगे। 22वें, फिर उसने मुझसे बेल्लोर की सी झलकी हुई जीवन के जल की नदी या आसमान का स्वर्ग दिखाया जा रहा है।
और ये पानी है वो लोग है ना, वे उसका मुंह देखेंगे। किसका? प्रभु यीशु मसीह का। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को हमारे कलीसिया में अपने आप को दर्शा चुका है और उसका नाम उसके माथे पर लिखा गया। दुल्हन को भी प्लेसिंग कर दिया है। यूहन्ना ने भी कहा मैं दुल्हन दिखाता हूँ, और वो दुल्हन कहाँ दिखा है? वहाँ आपने देखा है कि ये विलियम मैरियन ब्रानम खड़े हैं और कबूतर के सामने मैंने आया, और पिलर ऑफ जो कबूतर का होली स्पिरिट आया, माथे पे आया, दुल्हन तैयार हो गई। और फिर वो विलियम मैरियन बता रहा है कि मैं तेरे को दुल्हन दिखाता हूँ। वो चीज़ यहाँ पे उसने दिखाया। फिर यहाँ पे उसका मुंह देखेंगे। फिर क्या हो गया? यहाँ पे आ गया 6वीं आयत। फिर उसने मुझसे कहा, किसने? अनदर एंजल वाला गेम है यहाँ पे। ये बातें विश्वास, अभी हमने पढ़ा, ये बातें विश्वास योग्य ब्रैनम ने कहा, तब उसके सामने झुका। रिपीटेशन होगा क्या? वो एक ही आदमी के पास में 2 बार झुकेगा क्या? वो बोला ये बात सच्ची है, ये जब उसने बोला ये बात सच्ची है, विश्वास योग्य है, तो उसके सामने झुका। ये भी वही बोल रहा है। उसने कहा कि विश्वास योग्य और सत्य है ये बातें, प्रभु ने जो भविष्यवक्ताओं और आत्माओं का परमेश्वर है, दोनों भविष्यवक्ताओं का सेवकों का खुदावन है, अपने दूत को इसलिए भेजा। दूत यानी अनदर एंजल को इसलिए भेजा। पहली आयत मैंने पढ़ के दिखाया आपको कि अपने दासों को वो बातें शीघ्र पूरी होना अवश्य दिखाया। और दास लोग क्या करेंगे? दोनों सर्वेंट्स क्या करेंगे? प्रॉफिट रहेंगे और खुदा का संदेश बताएंगे। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, धन्य वो है जो पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को मानता है। जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा, धन्य वो है जो पढ़ते, सुनना मतलब भविष्यवक्ताओं की बात। मैं वही यूहन्ना हूँ जो ये बातें सुनता और देखता था। तब मैंने सुना और देखा तो जो दूत मुझसे बातें कर रहा था उसके पाँव पर दंडवत करने के लिए गिरा। तो उसने कहा ऐसा मत कर, देख मैं भी तेरा संगी दास हूँ। फिर उसने मुझसे कहा इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर, इसी के लिए मैं बताता हूँ, क्योंकि समय निकट है। फिर एक और बार, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, है ना। फिर उसने कहा कि कुत्तों का, टोनों का, व्यभिचार, अत्याचार, मूर्ति पूजक और झूठ के जड़ने वाले और गढ़ने वाले बाहर रहेंगे। इसी के लिए बेटा अनॉइंटेड के ऊपर में झूठा नालिश और झूठा आरोप और सेल्फ राइचियसनेस वाला तुम खुद सेल्फ राइचियसनेस है, क्योंकि तुम्हारे तो अपने आप को समझते हो, क्योंकि विदाउट चिन्ह, और आपको लगता है कि आप स्वर्ग जाने वाले। एक नए पैसे का चिन्ह साइन नहीं है। जितने भी आजू बाजू कलीसियाएं हैं और वहाँ पे जाके गुम्मट लगा के बैठे हुए कि हम स्वर्ग जाएंगे। सेल्फ राइचियसनेस अपने आप को बताते हो, दूसरों को बोलते हैं सेल्फ राइचियसनेस वाला मैसेज, जिसके ऊपर में अनाउंटिंग है। तुम्हारे पास में तो अनाउंटिंग नहीं है ना, खुदा की उपस्थिति है, और अपने आप को बता रहे स्वर्ग। तो सेल्फ राइचियसनेस कौन हो गया? तुम। इनके पास में कुछ है नहीं, और विश्वास दूसरों को जिनके ऊपर में साइन है उसके ऊपर में तुम लोग बातें बताते हो कि ऐसा है वैसा है करके। मुझ यीशु ने अपने दूत को, अब प्रभु यीशु मसीह एंजल ऑफ द लॉर्ड है, वो खुद आएगा क्या? वो बोल रहा है कि मैं एंजल ऑफ द लॉर्ड, मेरे दूत को, ये अनदर एंजल को इसलिए भेजता हूँ कि तुम्हारे आगे कलीसिया के विषय में इन बातों की विटनेस, हमने बताया ना, दोनों जन क्या करेंगे? गवाही देंगे, विटनेस देंगे। मैं दाऊद का मूल और वंश और उसका भोर का चमकता हुआ सितारा हूँ। तो मैंने समझाया कि मूल क्या है? मूल मतलब जड़। पुराने नियम को समाप्त करके अबॉलिश द फर्स्ट एंड एस्टैब्लिश द सेकंड न्यू वन, पुराने को खत्म करके, बंधवाई को खत्म करके फ्री होल्ड कर देता है ना। एक कॉन्सेप्ट, एक लीज होल्ड है और एक फ्री होल्ड है। लीज होल्ड मतलब तुम बंधे हो गए हो, एक बंधवाई वाला संदेश है, और फ्री होल्ड मतलब तुम खुद उसके मालिक हो। तो पुराने नियम के अंदर में क्या है? बंधा हुआ है। नए नियम के अंदर में आज़ाद है, ठीक है। और दुल्हन और आत्मा कहती है, दोनों फोटोग्राफ आपको दिखा दिए, पवित्र आत्मा और दुल्हन कहती है, दोनों फेसिंग कर रही है। ब्रदर ब्रानम भी खड़े हैं, बाजू में प्रभु यीशु मसीह भी है, खुदावन याजक का चेहरा बनाते हुए। तो आज का संदेश हम लोग
यही समाप्त करते हैं और अगले रविवार के लिए एक अच्छे संदेश के साथ में आपसे हम लोग फिर से मुलाकात